Hello, good afternoon, everyone. Uh, Today we are going to learn about the stepper motor interfacing with ARM. So see, in front of you, I have given you some characteristics of the stepper motor. So stepper motor are a constant power device. Okay, actually, it is used for angular displacement point of view. So that's why it is power is equal to angular velocity into torque. Okay, as motor speed is increasing, torque is decreases. Okay, the torque curve may be extended by using current limiting driver and increasing the driver voltage. Generally, the stepper motor exhibits more vibrations than the other motor type, as the discrete step tends to snap the rotor from one position to another. These vibrations can become very bad at some speed and can cause the motor to lose torque. The effect can be mitigated by accelerating quickly through the problem speed range, physically damping the system, or using a microstepping driver. Motor with a greater number of phases also exhibits smoother operations than those with the fewer phases. So remember, you already learn about the stepper motor. So that's why here I am giving you idea about the stepper motor. Okay, so stepper motor is now in you can see in the slides. Okay, here physically you can see that stepper motor will be looks like this. Okay. Now when you talk about the stepper motor, then the stepper motor has winding sequences. Okay, so that's why here the stepping sequences or winding sequences may be considered. So that's why there are three different types of stepping sequences are adopted. First one is half wave, second one is full wave, and third one is micro stepping mode. Okay, so out of that, here in front of you, here one phase sequence is shown. At a time only one phase sequence will be enabled, or only one winding will be enabled at a time. So here clockwise as well as anti-clockwise position is given to you. So in clockwise position, you will go from step 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, and in anti-clockwise direction, you need to go from step 4 to 3, 3 to 2, and 2 to 1. Okay, these steps will be continued till you will have to rotate in clockwise or in anti-clockwise directions. Now, in many applications, these stepper motor are adopted. Here I have given you a few applications. Generally in computer control, stepper motor are one of the most versatile form of positioning system. They are typically digitally controlled as a part of an open loop system and are simpler and more rough than closed loop servo system. Industrial application are in high speed peak and place equipment and multi-axis machines CNC machines, often directly driving lead screw or ball screw. In the field of laser and optics, they are frequently used in precision positioning equipment such as linear actuators, linear stages, rotation stages, and mirror mounts. Other uses are in packing machineries and positioning of wall pilot stages for fluid control system. Commercially,
Stepper motor are used in floppy disk drives, flatbed scanner, computer printer, plotter, and many more devices. So this is about the applications. Now we will go for the interfacing of stepper motor. So in this slide you can see the stepper motor is interfaced with ARM7, that is LPC2148. Port 0 is used for interfacing. Out of this port 0, pin number 11, 12, 13 and 14 are used for interfacing of the stepper motor. Okay, all these four windings are connected with these lines through ULN driver 2003. Okay, now see here the ULN driver is used for signal amplification. Whatever signal which is obtained from the LPC2148 is not adequate to drive the stepper motor. In such situation, to boost the power level, current level of the signal, ULN driver are prominently adopted. Nowadays, these drivers are used, but in earlier days, transistor pair will be used between these stepper motor and microcontrollers. So that's why such type of card will be necessary to interface the stepper motor. But now the trend and techniques are changed. Okay. Now this is about the ULN driver. Now next one that I am showing you here in this slide. अब हम यहाँ पर इंटरफेस करने जा रहे हैं. तो इंटरफेस करते समय देखिए 11, 12 और 13 और 14 जो लाइन्स है पोर्ट 0 की, मैं उसे यूज कर रहा हूं, तो मुझे एज अ आउटपुट लाइन उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा ना अभी. सो दैट्स वाई पोर्ट 0 की 11, 12, 13 और 14 लाइन को यहाँ मैं डिफाइन कर रहा हूं. देखिए पहले टेबल में A0 से लेकर A31 लाइन यहाँ पर पुट आउट कर दी. आउट ऑफ दैट 11, 12 और 13 और 14 को लॉजिक 1 बिट डिफाइन किया. ओके, 11, 12, 13 और 14 को लॉजिक 1 और रिमेनिंग को आप यहाँ पर 0 बिट पुट आउट करोगे, क्योंकि वो हमें यूज नहीं करना है. बस खाली जो यूज करना है वही लाइंस को मैं पोर्ट 0 की लाइंस को उनको डिक्लेयर डिफाइन कर रहा हूँ. मेरा हेक्स कोड प्रिपेयर होगा 0111 के लिए 7 और 1000 के लिए 8. ओके, तो यानी कोड क्या हो जाएगा मेरा हेक्साडेसिमल 00007800. गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट अभी? ओके. नो, अभी जो सेकंड टेबल है वो सेकंड टेबल में अभी मैं यहाँ स्टेपिंग सीक्वेंस यहाँ पर बताने जा रहा हूँ. सो दैट्स व्हाई स्टेपिंग सीक्वेंस हम यहाँ एक एक करके देखने जाएंगे. ओके, तो उसमें सेकंड रो, थर्ड रो जो येलो कलर में आपको बताया है, उसमें आपको मैंने एज इट इज ही कोड बताया है. ओके, 7 और 8. ओके, येलो कलर में जो रो है वो है 7 और 8 के लिए यहाँ पर एज इट इज जैसा पोर्ट 0 के लिए ऊपर बताया वही एज इट इज नीचे भी बताया. नाउ अभी मुझे यहाँ जो स्टेपिंग सीक्वेंस है वह स्टेपिंग सीक्वेंस यहाँ पर पुट आउट करना है. राइट, तो स्टेप सीक्वेंस में यहाँ पर दे रहा हूं. तो यहाँ स्टेप सीक्वेंस देते समय मैंने ट्रुथ टेबल में आपको बताया भाई सिंगल स्टेप सीक्वेंस. ओके, मैं ट्रुथ टेबल के ऊपर लेकर जा रहा हूँ. ट्रुथ टेबल में मैंने वाइंडिंग ए एनेबल हुआ है, यहाँ वाइंडिंग बी सी डी यहाँ पर 0 है, बाद में वाइंडिंग बी एनेबल किया है. ओके, बाद में वाइंडिंग सी एनेबल किया है और लैटर वाइंडिंग डी एनेबल किया है. बट मैं यहाँ आपको जो प्रोग्राम यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ इस प्रोग्राम में मैं दो सीक्वेंसेस यहाँ पर मैं एनेबल करने, दो वाइंडिंग यहाँ पर एनेबल करने जा रहे हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई हम यहाँ जो पहली स्टेप है मैंने यहाँ स्टेप में लिखा है 1 नंबर, वहां उसका रो देखिए
इस रो में मैंने A11 1 रखा, A12 0 है, A13 1 है और A14 0 है। ओके, तो यहाँ एट ए टाइम दो वाइंडिंग एनेबल रहेंगे। ओके, तो दोनों एनेबल होंगे तो इसका कोड हो जाएगा 0010, यानी इसका एक्स इक्विवेलेंट रहेगा 2, और 1000 के लिए इसका इक्विवेलेंट रहेगा 8। कोई डाउट अभी? पहली स्टेप सीक्वेंस समझ में आई? सेकंड स्टेप सीक्वेंस में देखिए, यहाँ पर अनदर दो वाइंडिंग मैंने यहाँ पर एनेबल किए हैं। ओके, तो यहाँ इस तरह एनेबल किए हैं, A11 0 है, A12 1 है, 13 1 है, 14 0 है। इसका हेक्स इक्विवेलेंट कोड आएगा 0011 का 3 और 0000 का 0। ओके, तो 3000 इस तरह कोड मुझे मिलेगा। थर्ड एक्साइटेशन, थर्ड स्टेप सीक्वेंस यहाँ पर ली है। थर्ड स्टेप में देखिए, A11 है 0, 12 है 1, 13 है 0 और 14 है 1। इसका इक्विवेलेंट कोड आया है 0101 का 5 और आगे के 4 zeros का है 0। और फोर्थ स्टेप सीक्वेंस मैंने यहाँ पर ली है, A11 है 1, 12 13 0 है और 14 यहाँ पर 1 है। ओके, तो इसका कोड आएगा मुझे 48। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? सभी को स्टेप सीक्वेंस समझ में आया? ओके, अभी ये जो स्टेपिंग सीक्वेंस है, ये स्टेप सीक्वेंस यहाँ पर दो वाइंडिंग को एक्साइट कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ इस तरह स्टेप सीक्वेंस मैंने लिया है। राइट, अभी मैं यहाँ प्रोग्राम राइट करने जा रहा हूं। तो प्रोग्राम राइट करने के लिए मुझे यहाँ पर इस कोड की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए पहले एक एक करके मैं स्टेटमेंट बताता हूं, यानी आपको वहां समझ में आ जाएगा। ओके, पहला है हैश इंक्लूड lpc21xx.h। ओके, ये हेडर फाइल रहेगी हमारे ARM7 के लिए, सो दैट्स व्हाई 21xx यानी कोई भी हेडर फाइल यहाँ पर जो प्रोसेसर है वह प्रोसेसर के लिए यह हेडर फाइल एप्लीकेबल रहेगी 21 सीरीज के लिए। नेक्स्ट है हैश इंक्लूड बोर्ड डॉट एच। तो बोर्ड डॉट एच यहाँ पर हम बोर्ड का पर्टिकुलर कोई कंपोनेंट या कोई पर्टिकुलर डिवाइस यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से हम बोर्ड डॉट एच यूज कर रहे हैं। तो मैं मोस्टली यहाँ पर एलसीडी यूज करूंगा। तो एलसीडी अगर यूज करना है तो मुझे यहाँ डिस्प्ले कराना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इस वजह से मैं यहाँ बोर्ड डॉट एच डिक्लेयर किया है सेकंड लाइन में। थर्ड लाइन देखिए, यहाँ INT मेन वाइड। ओके, इस तरह मेन फंक्शन डिफाइन किया, ओपन करली ब्रेस, बाद में ऑन साइन लॉन्ग इंट आई और जे, दो वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन किए आई और जे नाम के, क्योंकि वह मुझे यहाँ पर फॉर लूप इंट्रोडक्शन के लिए लगेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पर लूप इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, तो लूप के द्वारा मैं यहाँ पर स्टेपर मोटर की सीक्वेंस फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कराऊंगा। ओके, तो इस वजह से यह वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट आई और जे। अभी अगला स्टेटमेंट समझ में लीजिए, स्टार IO dir0, यानी हम यहाँ पर पोर्ट 0 डिक्लेयर कर रहे हैं। स्टार IO dir0, यह पर्टिकुलर स्टेटमेंट आपको अलाउ कर रहा है टू डिक्लेयर द डायरेक्शन ऑफ पोर्ट 0 IO लाइंस। ओके, सो दैट्स वाई मैं यहाँ ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 7800, तो ये कोड मैं यहाँ पास कर रहा हूं विथ ऑरिंग ऑफ दैट port register. Okay, so that's why is equal to star IODIR0 or in round bracket 0x00007800। ओके, आप डायरेक्टली यहाँ पर स्टार IODIR0 के बाद आपका कोड भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं लॉजिकल डेटा पासिंग। ओके, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर लॉजिकल डेटा पासिंग के लिए मैं यहाँ इस तरह डेटा पास कर रहा हूं, यानी मेरे अदर बिट्स वहां हैम्पर नहीं होंगे। जो IODIR0 है तो उसमें
अदर जो बिट्स है वो अदर बिट्स के लिए यहाँ मेरा डाटा करप्शन नहीं होगा, इस वजह से मैं लॉजिकली वह डाटा पास कर रहा हूं IODR 0 रजिस्टर में। गेटिंग एवरीवन? Now, next one statement is Q underscore LCD init in round bracket title. Okay. लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि ये यहाँ LCD init यहाँ पर क्यों लग रहा है। LCD init यह नाम का फंक्शन है, यह फंक्शन हमारे बोर्ड डॉट एच में प्रेजेंट है, टाइटन नाम का हमारा बोर्ड है, इस वजह से टाइटन नाम के बोर्ड में हम यहाँ यह ऑलरेडी रिटर्न किया है इस तरह का फंक्शन। सो दैट्स व्हाई LCD init हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई LCD init इन राउंड ब्रैकेट टाइटन इसलिए लिखा है। ओके, तो हमें यहाँ LCD के लिए प्रोग्राम यूज करने की जरूरत नहीं रहेगी, हम डायरेक्टली इसके फंक्शंस कॉल करके हमारा डाटा पास कर सकेंगे। गेटिंग एवरीवन? नाउ व्हाइल इन राउंड ब्रैकेट 1, इसका अर्थ है यहाँ पर कि हम यहाँ इनफाइनाइट लूप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई व्हाइल इन राउंड ब्रैकेट 1 कर्ली ब्रेस Q अंडरस्कोर डिस्प्ले LCD। ओके, यह आपको अलाउ कर रहा है टू पास अ स्ट्रिंग दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो हम यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस नाम की टेक्स्ट हम LCD के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। इस पर्टिकुलर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टोटल कुल मिलाकर 16 कैरेक्टर है, इस वजह से 16 लिखा है वहां। ओके, तो ये डिस्प्ले LCD नाम का जो फंक्शन है ये आपको अलाउ कर रहा है टू डिस्प्ले डाटा ओवर द LCD स्क्रीन। गेटिंग एवरीवन? ओके, नाउ हियर अ फॉर लूप इज रिटर्न। ओके, तो फॉर लूप इस तरह लिखा है, फॉर इन ब्रैकेट j इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन j लेस देन 12 सेमीकोलन j प्लस प्लस। j से शुरुआत कर रहे हैं 0 से अप टू लेस देन 12। हम यहाँ पर 12 टाइम्स यहाँ पर ये लूप एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई इस वजह से यहाँ ये 12 यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, 12 की जगह 15 16 18 20 जितने बार आपको यहाँ पर आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन या रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कराना है, इसके ऊपर आप वह नंबर डिसाइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू 12 लिखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन स्टेटमेंट इज स्टार IO सेट 0 इज इक्वल टू 0x00002800। अच्छा, अभी यहाँ पर पहले 4 स्टेटमेंट यहाँ पर जरूरी है, तो पहले 4 स्टेटमेंट यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लो। मैं यहाँ पर आपको ग्रुपिंग कर दे रहा हूं। ओके, गेटिंग एवरीवन? अभी आपको सिर्फ यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो 4 स्टेटमेंट का ग्रुप है वो अंडरस्टैंड करना है। Once you understand it, the same thing will be repeated again and again. Okay? तो पहले चारों स्टेटमेंट देखिए, स्टार IO सेट 0 इज इक्वल टू 0x2800। ओके, यहां पर ये 2800 ये कोड है, ये स्टेप 1 का, यानी हम यहाँ इस तरह स्टेप 1 यहाँ पर 2800 इस तरह का कोड फाइंड आउट किया है। तो हम पहली स्टेप यहाँ पर स्टेपर मोटर की पास कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई स्टेपर मोटर की फर्स्ट स्टेप पास करने के लिए हम यहाँ पर वाइंडिंग को एक्साइट करेंगे। सो दैट्स व्हाई स्टार IO सेट 0 पोर्ट 0 में आपको पिन नंबर 11 टू 13 के ऊपर 28 इस पर्टिकुलर कोड को पास करना है। सो दैट्स व्हाई इस कोड को पास करने के लिए आपको यहाँ वह लाइन 1 करना है, वह लाइन एज अ लॉजिक 1 करना है, तो रिस्पेक्टिव वाइंडिंग एनेबल होगी। ओके, अभी एनेबल होगी तो एनेबल कितने देर रखना है, तो उसके नीचे फॉर लूप लिखा है।
for I is equal to 0 semicolon I less than 25,000 semicolon I plus plus semicolon। यानी यह लूप आपको अलाउ करेगा टू इंट्रोड्यूस डिले, यानी आपने जो वाइंडिंग एक्साइट की है वो वाइंडिंग कब तक एक्साइटेड रहेगी, जब तक ये डिले फिनिश नहीं होता है तब तक। जैसे ये डिले फिनिश हो जाएगा वाइंडिंग का एक्साइटेशन हम निकाल लेंगे। सो दैट्स व्हाई आगे का थर्ड जो स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट है स्टार आईओ सीएलआर 0 इज इक्वल टू 2800। फिर से वही वाइंडिंग को हम क्लियर कर रहे हैं। हम अभी वो वाइंडिंग को डी एनर्जाइज कर दिए, यानी वहां पे लॉजिक 0 बिट पुट आउट कर दिया। कितने देर के लिए? फिर से उतना ही डिले के लिए। गेटिंग एवरीवन? ये चारों स्टेटमेंट समझ में आ गया? यानी पहले है आईओ सेट, बाद में डिले, बाद में है आईओ क्लियर, बाद में है डिले। ओके, तो ये चारों स्टेटमेंट फिर से रिपीट हो रहे हैं आपके इस पर्टिकुलर स्क्रीन में 4 टाइम्स। बराबर? सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, 28 की जगह आ रहा है 30, उसकी जगह आ रहा है 50, उसकी जगह आ रहा है 48। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? ओके, now when you run this code your stepper motor will run in forward direction। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉरवर्ड यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पर लिखा है, सो इस वजह से स्टेपर मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होगी। ओके, नाउ अभी इसके बाद जैसे वो लूप फिनिश हो जाएगा कर्ली ब्रेस यहाँ पर एंड कर देगी। ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन को अभी मैं यहाँ आउट उसके बाहर आ जाऊंगा, तो वहां मैं एग्जीक्यूट करूंगा नेक्स्ट वन कोड इज क्यू अंडरस्कोर क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन के द्वारा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, स्क्रीन क्लियर हो जाएगा और वहां पर फिर से मैं डिस्प्ले कराऊंगा क्यू अंडरस्कोर डिस्प्ले एलसीडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह यहाँ पर डिस्प्ले होगा। वंस इट इज डिस्प्लेड, मैं फिर से वही कोड यहाँ पर रिटर्न एग्जीक्यूट कर रहा हूं फॉर j इज इक्वल टू 0 j लेस देन 12 j प्लस प्लस। हाँ, अभी यहाँ पर ये कोड जब एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो देखिए मैंने सीक्वेंस थोड़ा उल्टा कर दिया। 28 के बाद दिया है 48, 48 के बाद दिया है 50, 50 के बाद 30। अगर आप यहाँ कंपेयर करोगे 28 के बाद था 30, यहाँ 28 के बाद है 48। 48 जो है वो लास्ट वाला है, मैंने यहाँ उसे चेंज कर दिया है। ओके, सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ 28 के बाद 30, ओके 28 के बाद दिया है 48, 48 के बाद दिया है 50, 50 के बाद दिया है 30। ओके, तो इस तरह का मैंने वहां कोड दिया है। ओके, तो ये कोड जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो आपको वहां स्टेपर मोटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होते हुए दिखाई देगी। once it is finished, okay, you will see q underscore clear screen। okay, फिर से हम क्लियर स्क्रीन कर देंगे। क्लियर स्क्रीन करने के बाद प्रोग्राम फिनिश करेंगे कर्ली ब्रेस से रिटर्न 0 और कर्ली ब्रेस फिनिश। ओके, so this is about the program, I hope you getting this। okay, now see you can able to run that program in this fashion। ओके, देखिए यहाँ पर स्टेपर मोटर कैसे रोटेट हो रही है। ओके, फिर से देखिए यहाँ पर स्टेपर मोटर किस तरह रन हो रहा है। ओके, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। गेटिंग एवरीवन? कोई डाउट? ओके, now I hope everyone is getting this। okay, if you have any doubt you can ask me, no problem। okay, so ठीक है, thank you very much, give your attendance in comment box। thank you।